Hello students, let us start exercise 7.4. Just see the question number 1. Question number first is show that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest one. So we have drawn here a right angle triangle ABC in which angle B is a right angle. We have to prove that this hypotenuse AC is the longest side because AC is the hypotenuse. So let us see how can we prove. This is a simple question. So let us see. Just keep in your mind कि एंगल साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. ध्यान में रखना होगा कि बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है. ओके, दिस थ्योरम, इस थ्योरम को ध्यान में देना पड़ेगा हमको. तो प्रूफ, तो लेट अस कंपेयर एंगल बी विथ एंगल सी और फिर ए. तो सिंस एंगल बी इक्वल टू 90 degree, therefore angle B is greater than angle C. क्योंकि C और A दोनों एक्यूट होगा इसलिए, because angle C is an acute angle. तो C is an acute angle, therefore angle C is less than angle B. If angle B is greater than C, just see the side opposite to angle B. Which side is there opposite to angle B? Opposite to angle B, the side is AC. So we can say कि AC is greater than angle C. Which side is opposite to C? This AB. So AC is greater than AB. This is equation number 1. As angle B is greater, therefore the side opposite to B, AC will be greater than the side opposite to angle C, which is AB. So AC is greater than AB. Just now again compare. Now angle B is greater than angle A because angle A is an acute angle. So if angle A is less than angle B, it means that angle B is greater than angle A. So the side opposite to angle B is AC. Therefore AC is greater than the side opposite to angle A is BC, the BC. This is equation number 2. Now from equation 1 and 2, just you see that AC is greater than AB. AC is greater than AB. एंड हेयर AC इज ग्रेटर देन BC. AC जो है AB से ग्रेटर है और यही AC BC से भी ग्रेटर है. तो यू कैन से दैट कि AC इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड question is that in figure 7.48 AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q. Also PBC is less than QCB. So prove that AC is greater than AB. So figure is like this. Question number 2. एक फिगर है, ऐसा बना लें आप. दोनों साइड को एक्सटेंड कर देना है. This is ABC and this one is P here and here it is Q. ABC PQ. Now in the question it is given that the angle PBC is less than angle QCB. So to prove or to show AC is greater than AB. तो यहां पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC PBC, एंगल PBC जो है, एंगल PBC दिस एंगल is less than QCB this angle. तो
पीबीसी लेस है क्यूसीबी से, क्यूसीबी बड़ा है और ये सी एंगल बड़ा है, बी एंगल छोटा है। प्रूव करना है कि एसी जो होगा वो ग्रेटर होगा एबी से। ओके, लेट्स सी। आप देखो यहां पे कि अगर इसके साथ में हम इस एंगल को प्लस कर दें तो ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करें कि एंगल ए बी सी, ये लिया ए बी सी एंड पी बी सी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल टू 180 एंड दिस इज लीनियर पेयर। तो यहां से हमको वैल्यू निकालनी है ए बी सी का, तो होगा ए बी सी इक्वल टू 180 माइनस PBC। फिर इसी तरह से इस साइड में आए, वी विल राइट दैट कि एंगल ACB प्लस ACB सी एंगल प्लस एंगल QCB इक्वल टू 180 linear pair. Just find out the value of ACB from here. It means that we have to transfer the QCB into that side. So 180 minus QCB. Now we have two equations, this one and this one. One more thing is given in the question, but angle PBC is less than angle QCB. It means this one is greater. Now look here into the equation. The value of ABC is this and the value of ACB is this. 180 is same, but QCB is greater than PBC. PBC is less than QCB. It means that QCB is greater than PBC. तो आप ये समझो कि QCB अगर ग्रेटर है तो 180 से ज़्यादा माइनस हो रहा है और ये PBC स्मॉलर है इससे, तो 180 से यहाँ पे कम माइनस होगा। तो 180 में से अगर कम माइनस होता है तो जो बचेगा वो ज़्यादा बचेगा, दैट मीन्स ABC ज़्यादा होगा। यहाँ पे ग्रेटर नंबर माइनस हो रहा है 180 से, क्योंकि सेम नंबर से 180 से ही दोनों को माइनस होना है। तो जहाँ पे ज़्यादा माइनस होगा वहाँ पे बचेगा कम और जहाँ पे कम माइनस होगा वहाँ पे ज़्यादा बचेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो पीबीसी यहाँ पे कम माइनस हो रहा है, कम माइनस हो रहा है तो एबीसी ग्रेटर हो जाएगा, इज ग्रेटर देन एसीबी। अब एबीसी के सामने का साइड है एसी, तो एसी ग्रेटर होगा, एसीबी के सामने है एबी। प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर दिया है, फिगर बना लें। कुछ ऐसा फिगर है, ऐसा, ये है ए, यहाँ पे है बी, सी, डी और यह है ओ। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल बी इज लेस देन ए, एंगल सी इज लेस देन डी। तो टू प्रूफ है AD इज लेस देन BC, इसका मतलब BC ग्रेटर होगा AD से। ओके, प्रूफ करते हैं। तो B लेस है A से,
ये ए और ये बी। तो अगर बी छोटा है ए से तो ए बड़ा होगा। तो यहां से स्टार्ट करें कि सिंस एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। ए ग्रेटर है, हमने उल्टा साइन किया, ए ग्रेटर है बी से, तो ए का सामने का साइड क्या है, ए के सामने का साइड है ओ बी, चाहे बी ओ। तो बी ओ इज ग्रेटर देन बी के सामने का साइड ओ ए से, ए ओ से या ओ ए से। देखिए ऐसा होगा, ए के सामने का साइड जो है बी ओ वो बड़ा होगा बी के सामने का साइड ए ओ से। ये हो गया। इस तरह से अब इस ट्रायंगल में आइए कि यहां पे देखेंगे कि D ग्रेटर है C से, तो एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C यहाँ पे। तो D ग्रेटर है तो D के सामने का साइड है OC या CO, वो ग्रेटर होगा C के सामने के साइड DO से। अब आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो BO प्लस CO, BO प्लस CO इज ग्रेटर देन AO प्लस DO। BO को और CO को प्लस कर देंगे तो BC हो जाएगा, और AO और DO को प्लस करेंगे, AO और DO, तो AD हो जाएगा। तो BC इज ग्रेटर देन AD। यहाँ पे लेस देन लिखा है तो आप लिख सकते हो अगर चाहो, तो AD इज लेस देन BC। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर बनाएं। कुछ ऐसा फिगर है, A B C D। क्वेश्चन में A B एंड C D आर स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। A B is smallest side and CD is longest side। और क्वेश्चन में दिया है टू प्रूव एंगल A is greater than angle C and angle B is greater than angle D। इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले AC को ज्वाइन कर दें। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC। अब यहां पे हम एंगल्स के नाम लिख रहे हैं, एंगल 1 2 3 और ये 4। नाउ सी हाउ कैन वी प्रूव दिस। At first we will be in triangle ABC. To see here in triangle ABC, you know that AB is the smallest side. AB is a smallest side which is given. So AB is the smallest side. Okay. So therefore AB and BC, two sides will be compared, so therefore BC will be greater than AB. So AB is smallest than AB is smaller than BC, so side angle opposite to this BC is 2, so therefore angle 2 is greater than AB के सामने का एंगल है 4। ओके, इसमें देखा आपने कि AB सबसे छोटा था, तो AB BC से भी छोटा होगा, तो BC के सामने का एंगल AB के सामने के एंगल से ग्रेटर होगा। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC,
CD is the longest side. तो CD अगर लॉन्गेस्ट साइड है तो CD जो है AD से ग्रेटर होगा, तो CD इज ग्रेटर देन AD. अब CD के सामने का एंगल, द एंगल अपोजिट टू CD इज एंगल 1, तो दैट विल बी ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू AD, which is angle 3. Now just add equation 1 and 2. Adding equation 1 and 2, you will get angle 2 plus angle 1. This one and this one will be greater than angle 4 plus angle 3. 2 plus 1, 2 और 1 को ऐड कर दो तो एंगल A बनता है और इससे बनता है C. तो ये प्रूव्ड हो गया. तो फर्स्ट वन हैज बीन प्रूव्ड. नाउ वी हैव टू प्रूव सेकंड वन. एंगल B इज ग्रेटर देन D. इसके लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको हटा के, और हमें इसको जोड़ना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा. और जैसे यहाँ पे किया था सिमिलरली वहां पे भी कर सकते हैं हम लोग. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, फिगर दिया है, तो लेट अस ड्रॉ अ फिगर. PQR okay. So in this question it is said that PR is greater than PQ. Given PR is greater than PQ, PS bisect QPR. And to prove angle PSR is greater than angle PSQ. Okay, so look, we have to solve this. Proof. एंगल्स के नाम ले लें, थोड़ा सिंपल रहेगा. तो लेट अस हैव द एंगल्स नेम. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5 एंड दिस वन इज 6. ओके, सबसे पहले PR इज ग्रेटर देन PQ. PR इज ग्रेटर देन PQ. इट इज गिवन. तो देखो PR कहाँ है? PR, दिस इज PR and this is greater than PQ. तो PR के सामने का जो एंगल है वो है एंगल 3 and that will be greater than PQ के सामने का एंगल 6. नंबर 1. ओके, अगर if PR is greater than PQ then the angle opposite to PR which is 3 will be greater than the angle opposite to PQ which is 6. Another thing is that कि PS is bisector. PS is bisector of angle P. Therefore, angle 4 equal to angle 5. Equation number 2. Now come to the exterior angles. You know that कि exterior angle जो होता है, that suppose we have taken angle 2, तो this is the exterior angle of 3 and 4. Similarly, 1 is the exterior of 4, 5 and 6. So now we will take that कि angle 1 equal to 5 plus 6. Exterior angle. Okay. And angle 2 equal to angle 3 plus angle 4. Exterior angle. Exterior angle is equal to the sum of interior angles. Just now see here.
This is 5 plus 6 and this is 3 plus 4. You know that here according to the question 3 and 6, this is 3, this is 6. तो हमको पहले से पता है कि 3 ग्रेटर है 6 से, और हमने अभी देखा कि 4 और 5 इक्वल है, दिस वन एंड दिस वन, 4 और 5 इक्वल है। तो जो सेकंड वाला 6 और ये 3, अगर 3 ग्रेटर होगा तो एंगल 2 ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर 6 ग्रेटर हुआ तो 6 का मतलब PRS ग्रेटर हो जाएगा। कहने का मतलब कि 4 और 5 जब इक्वल है तो डिसाइडर है 6 और 3, एंगल 6 और 3। तो 6 अगर ग्रेटर है, 6 अगर ग्रेटर है तो एंगल 1 ग्रेटर हो जाएगा, 3 अगर ग्रेटर है तो 2 ग्रेटर कहलाएगा। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, तो हमने 6 और 3 में डिसाइड डाला था तो 3 ग्रेटर है। पहले यहाँ पे 3 अगर ग्रेटर है तो 3 के एंगल का मतलब कौन सा एंगल है? 3 का मतलब है 3 का मतलब है यहाँ पे 1, अगर और इसका 3 का 2 है और इसका 5 सॉरी 3 और 6 के लिए 1 है। तो लेट अस सी, अगर 6 ग्रेटर है तो 1 ग्रेटर होगा, और अगर 3 ग्रेटर है तो 2 ग्रेटर होगा। तो हमारा कौन सा ग्रेटर है? हमारा 3 ग्रेटर है। 3 ग्रेटर होने का मतलब एंगल 2 ग्रेटर होगा। तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। एंगल 2 का मतलब है PSR, तो PSR इज ग्रेटर देन, इसका मतलब है PSQ। तो सिर्फ डिसाइडिंग ये करने वाला था 3 और 6, जो कि क्वेश्चन के शुरू में ही दिया हुआ था। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि सपोज करो कि एक पॉइंट है और ये AB है, इस पे जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे उसमें से जो परपेंडिकुलर होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ओके। तो गिवन O is a point outside the line AB, line segment AB to prove OP is the shortest side. Now prove। तो इसको ऐसे प्रूव करें जैसा हमने पिछला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाया था, और कि अगर हमने इसको राइट एंगल है 90 डिग्री ले लिया तो लिखें कि सिंस एंगल P इज ग्रेटर देन, A से कंपेयर करें एंगल A, बिकॉज एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। तो P का सामने का साइड OA इज ग्रेटर देन OP। अब इस ट्रायंगल में आए, ऑल्सो P इज ग्रेटर देन एंगल B, तो P के सामने का साइड OB इज ग्रेटर देन OP। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2,
OP is the shortest side. Okay, that's all for today. Meet you soon in the next video. Thank you.